हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स फॉर द एग्जामिनेशन 2024 सेक्शन ए. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन बी. Section B contains 7 questions and you have to attempt any 4 questions from this section. Every question have 3 parts, first, second and third. If you are attempting question number 4, then you have to attempt its all parts. First and second part are of 3 marks and the part is of 4 marks. मैं आपके साथ पूरा solution शेयर कर रही हूँ, means 7 questions का solution मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Let's start. Question number 4 part 1. It is from matrix. Matrix A given है. Find A square. If A square is equal to PA, then find the value of P. First of all, we are finding A square. Look at the matrix A which is given. We can take 4 common. It will make your calculation easy. आप बिना 4 कॉमन लिए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप कॉमन ले लेते हैं देन द कैलकुलेशन विल बी इजी. नाउ वी आर फाइंडिंग ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए. फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column. Then we can take 2 as common. It will become 32 1 minus 1 minus. This is the value of a square. Now question में हमें given है if a square is equal to pa then find the value of a. इस a square की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म pa. a की वैल्यू हमें नोन है. अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 32 को हमने ब्रेक किया है 8 इंटू 4. नाउ वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू बाय a. a स्क्वायर इज इक्वल टू pa एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a. देयरफॉर p इज इक्वल टू 8. सेकेंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है x. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. जैसे ही हमें ये वर्ड्स अपने आंसर क्वेश्चन पेपर में देखते हैं, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई Sridharacharya formula. Factorization is not possible. And to apply Sridharacharya formula, first of all look at the given quadratic equation. It is in standard form or not. अगर standard form में नहीं है then first of all convert the given quadratic equation in a standard form. But this equation is given in the standard form. Standard quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Now compare these two equations and find the value of a, b, c. A is 1, coefficient of x is square, b is minus 4, coefficient of x, and c is the constant term. In this question, it is minus 2. Now apply Sridharacharya formula. That is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Put the given values. अब देखिए अंडर रूट 24 की वैल्यू आप मैथमेटिकल टेबल से भी पुट कर सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा फैक्टराइज भी कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था यू मे यूज मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन. अब डायरेक्ट 24 की वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर हम 24 को थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 एंड नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट हम लेंगे टेबल से. 2 से डिवाइड करके इट विल बिकम 2 प्लस माइनस 6. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 फ्रॉम मैथमेटिकल टेबल. इट इज 2.449. नाउ फर्स्ट रूट वी विल फाइंड बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड सेकेंड बाय नेगेटिव साइन.
First root is 4.449 and the second root is minus 0.449, but we have to give our answer up to 2 places of decimal. It will become 4.45 due to this 9, this will become 5, and second root 0.45. Third part, question number 4. In the given diagram, triangle ABC is right angled at B. BDEF, BDEF. This is the rectangle. AD is 6 centimeter, CE 4 centimeter, and BC 12 centimeter. 4 पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEC. ADF this triangle is similar to FEC. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कंसीडर करना है. नाउ लुक एट दिस. BDEF is a rectangle. It means it's all the 4 angles are right angled. So and ABC is right angled at B. अब देखिए ट्राइंगल ABC को अगर हम कंसीडर करें तो एंगल B इज 90 डिग्री. लेट एंगल A इज थीटा. नाउ द एंगल C विल बी 90 माइनस थीटा. नाउ come to the triangle ADF. It is a right angle triangle because it is 90 degree. One angle is 90 degree, second is theta, and the third one is 90 minus theta. In triangle EFC, it is 90 minus theta. It is 90, so this will become theta. Now, between these two triangles, all the angles are equal. It means these triangles are similar triangles. जैसे ही किसी भी triangle के 2 एंगल्स इक्वल प्रूव होते हैं तो वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं. बिकॉज अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं देन द थर्ड विल बी ऑल्सो इक्वल. चलिए अब फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है और जो जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उनको हम मेंशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल A इज थीटा, ये हमने लेट किया है. देन एंगल C इज 90 माइनस थीटा. In triangle ADF, angle D is 90, angle A is theta, and angle F is 90 minus theta. And in triangle FEC, angle E is 90, angle C is 90 minus theta, and angle F is theta. In triangle ADF and triangle FEC, angle D is equal to angle E is equal to 90 degree, angle A is equal to angle F is equal to theta. Therefore, triangle ADF is similar to triangle FEC. Now come to the part B. Prove that triangle ADF is similar to triangle ABC. ADF, ये ग्रीन वाले ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल के. तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या सेम है. एंगल B 90 डिग्री है और अगर ट्राइंगल ADF को देखें तो एंगल D 90 है, तो वन एंगल इज सेम. नाउ एंगल A is common between the both triangles, that is theta. और जैसे ही 2 angles equal हुए, it means both the triangles are similar triangles. In triangle ADF and triangle ABC, angle D is equal to angle B. Both are of 90 degree. Angle A is equal to angle A. It is a common angle. Therefore, triangle ADF is similar to triangle ABC. Now come to the next part. Find the length of FE.
FE means this length. Now FE is included in the triangle EFC, so we are using the first result. Since triangle ADF is similar to triangle FEC, so their corresponding sides will be proportional. We have to find EF. AD अपॉन FE इज इक्वल टू, नेक्स्ट वो साइड हम लेंगे जो हमें गिवन है. नेक्स्ट आप देखिए CE हमें नोन है और BC हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है. इफ BC इज 12 सेंटीमीटर and CE is 4 centimeter, it means this FD will be 8 centimeter. So we are taking FD, DF upon EC. Now put the given values. AD is 6, FE we have to find, and DF is 8 and CE is 4. FE is 3 centimeter. Now come to the last part of this question. Find the area of triangle ADF ratio area of triangle ABC. हमें इन दोनों triangles के area का ratio find out करना है. So we are applying area theorem. According to the area theorem, area of two similar triangles are proportional to the square of their corresponding sides. Area of triangle ADF ratio area of triangle ABC, and these are similar triangle. Therefore, since triangle ADF is similar to triangle ABC, therefore triangle ADF, area of triangle ADF ratio area of triangle ABC will be equal to square of corresponding sides. अब वो साइड हम कंसीडर करेंगे जो जिसकी लेंथ हमें नोन है. तो आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो ADF में हमें FD नोन है 8 सेंटीमीटर और ABC में हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC नोन है, दैट इज 12. सो इट इज इक्वल टू DF अपॉन BC स्क्वायर, और आप मेंशन कर दीजिए by area theorem. The area of two similar triangles are proportional to the squares of their corresponding sides. Now put the value. DF is 8 and BC is 12. Answer is 4 by 9. 4 is to 9. Question number 5. First part, using step deviation method, find the mean monthly income of the employee. स्टेप डेविएशन मेथड से हमें मीन फाइंड आउट करना है. तो चलिए टेबल हम इसकी बनाते हैं. मंथली इनकम, नंबर ऑफ प्लेयर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड मिड वैल्यू. 0 to 4 की मिड वैल्यू होगी 2. आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. दैट इज 6, 10, 14, 18 एंड 22. नाउ वी हैव टू फाइंड डेविएशन, दैट इज x माइनस a. a इज एज्यूम्ड मीन. तो आप इस मिड वैल्यू में से किसी को भी मीन एज्यूम कर लीजिए. सपोज मैं 14 को एज्यूम कर रही हूँ, आप 10 को भी कर सकते हैं. d इज इक्वल टू x माइनस ए. 2 माइनस 14 दैट इज माइनस 12. 6 माइनस 14 माइनस 8.
10 minus 14 minus 4, 14 minus 14 0, that is 4 and that is 8. Now t x minus a upon I, अब इस d को आप I means size of class interval, here it is 4 से डिवाइड कीजिए. f into t, frequency multiply by t, summation f and summation f t. नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए, -201, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए 20, आपस में इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दैट इज -181 एंड समेशन f इज 100. क्वेश्चन में भी हमें गिवन है. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज एक्चुअल मीन इज इक्वल टू assumed mean plus summation ft divided by summation f multiply by I. Here assumed mean is 14, summation ft is -181, summation f is 100 and the class interval I is 4. Now solve this. .76. Second part, it is from GST. The following bill shows the GST rate and marked price. Find the total amount to be paid including GST. 2 articles purchase किए गए हैं, LED TV and MP4 player. LED TV की कॉस्ट है 12,000, 1 क्वांटिटी परचेज की गई है और रेट ऑफ GST ऑन LED TV इज 28%. MP4 की कॉस्ट है 5,000 और इस पर GST एप्लीकेबल होगा 18% रेट से. वी हैव टू find the total amount to be paid including GST. First of all, LED TV के लिए हमें 12,000 पे करना है, बट इसके ऊपर कितना GST एप्लीकेबल होगा उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं. LED TV that will be 28% of cost price of LED, that is 12,000. 3,360. तो LED TV के लिए उसको 12,000 उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस 3,360 GST पे करना है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग GST ऑन MP4 प्लेयर. दैट इज 18% ऑफ 5,000 rupees 900. Now total amount is equal to 12,000 उसको LED TV के लिए पे करना है, उसके ऊपर GST पे करना है 3,360, 5,000 for MP4 player and GST on MP4 player is 900. This is the total amount. 21,260 rupees. Now third part of this question. सर्कल से ये क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट B, एंगल PQB, दिस एंगल इज 55 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम 2 पॉइंट्स हैं जिन पर कंसंट्रेट करते हैं. फर्स्ट विच इज गिवन एंड सेकेंड विच वी हैव टू फाइंड. तो आप देखिए 55 डिग्री हमें गिवन है, साथ ही हमें गिवन है AB इज टेंजेंट. और अगर AB टेंजेंट है और O सर्कल है, इट मीन्स OA इज द रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इस टेंजेंट ने जहां पर सर्कल को टच किया है उसी से ये OB रेडियस ड्रॉ की गई है. इट मीन्स दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू सेंटर, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अगर अब हम देखिए कहाँ यूज करेंगे इसको. अब आप देखिए हम इसमें ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं PQB. इस ट्राइंगल में आप देखिए 2 एंगल्स अब हमें नोन हैं. This angle is 55, this is 90, so we are able to find this angle.
दिस विल बी 180 माइनस 55 प्लस 90, और जैसे ही ये एंगल हमें फाइंड हो गया तो x भी इसके इक्वल होगा. हाउ? इफ वी कंसीडर द आर्क SB, देन इसी आर्क को सरकमफेरेंस के एक पॉइंट R पर मीट करवाया गया है और इसी आर्क को सरकमफेरेंस के पॉइंट P पर मीट करवाया गया है. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट. तो चलिए हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ x, देन वी विल कम टू द y एंड z. जो भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उनको हम मेंशन कर रहे हैं. देखिए सबसे पहले हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री डिस्कस किया था. सो एंगल PBQ is equal to 90 degree. Why? Because AB is tangent and OB is a radius at point of contact. Now in triangle PBQ, angle PQB plus angle PBQ plus angle QPB will be 180 degree. Why? Since sum of angles of a triangle is 180 degree. Now angle PQB is 55 degree, PBQ is 90, and this is we have to find. degree. This is 35, it means x is also 35. अब हम इसको मेंशन करेंगे. एंगल QPB is equal to एंगल x, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट. आप चाहें तो सेगमेंट का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. हमने सेगमेंट कंसीडर किया है SB. नाउ वी हैव टू फाइंड y और z. लुक एट दिस, लुक एट द फिगर. अगेन वी आर कंसीडरिंग द आर्क SB. आर्क SB को अगर सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल बन रहा है, और इसी आर्क को अगर सेंटर पर मीट करवाया गया तो y बन रहा है. एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सरकमफेरेंस. मीन्स y विल बी द ट्वाइस ऑफ 35, 70 डिग्री. तो y भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. चलिए अब हम इसको मेंशन करते हैं. y इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल दिस, बिकॉज रीजन मेंशन करना मस्ट है. आर्क यहां पे आप लिख सकते हैं SB हम कंसीडर कर रहे हैं. अगेन कम टू द फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z. Z is equal to x is equal to 35 degree. Angle of alternate segment. इतना ही सफिशिएंट है. आप और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो लिख दीजिए. सिंस QB is tangent and SB is a chord. We have find x, y and z. So come to the B part of this question. Prove that RB is parallel to PQ. Now we have to prove RB is parallel to PQ. This line RB and the line PQ are parallel. Look at this. If
RB and PQ are parallel lines, then PB or SR are transversal line. Suppose we are considering PB, तो देखिए टू लाइन है और उनको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है. अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं देन द गिवन लाइंस विल बी पैरेलल. तो देखिए ये वाला एंगल जस्ट हमें इक्वल प्रूव करना है इसके. ये वाला एंगल हमने 35 डिग्री फाइंड आउट किया है, एक्स भी हमने 35 फाइंड आउट किया है. तो जस्ट वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू 35, देन RB विल बी पैरेलल टू PQ. अब इसके लिए आप देखिए, इफ वी कंसीडर द ट्राइंगल ORB, then OR is equal to OB, radius of same circle. It means ORB is an isosceles triangle, or in isosceles triangle opposite angles of opposite sides are equal. It means if OR is equal to OB, then their opposite angles, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा. अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए. इट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल. चलिए अब हम इसको मेंशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल ORB, OR is equal to OB, radii of same circle. Therefore, angle ORB is equal to angle OBR is equal to 35 degree. Now, angle OBR is equal to angle SPB. Both are 35 degree. Therefore, RB is parallel to PQ since alternate angles are equal. और यही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1. इट इज फ्रॉम GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स इन GP सच दैट देयर प्रोडक्ट इज दिस. फाइंड द नंबर्स. बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे आफ्टर पार्ट ए. 3 नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं इन GP. तो 3 नंबर्स हम स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो हम GP में लेट करेंगे. लेट द नंबर्स बी A upon R, A and AR. These are in GP and with common ratio R. According to the question, their product is 3375. इनकी प्रोडक्ट हमें गिवन है. अब देखिए, अगर हम ये पर्टिकुलर नंबर लेट करते हैं तो हम केवल प्रोडक्ट गिवन होने पर वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज R इज कैंसल्ड आउट. A cube is equal to 3375, so A will be the cube root of 3375. अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. A is equal to 5 multiplied by 3 means 15. बी पार्ट में हमें गिवन है द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों के प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो आंसर है 750. According to the second condition given in the question, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 A upon R and A को ऐड करना है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड 2 में A और AR में, दैट इज 750. A स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें 1 upon R plus R is equal to 750. A square means 15, A is 15, so A square is 15 into 15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 plus 3R square is equal to 10R.
means 3r square minus 10r plus 3 is equal to 0. Quadratic equation in R. 9 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 10 है, 9 and 1, this is 0 then r is equal to 3, and if this is 0 then r is equal to 1 by 3. Now first a is equal to 15 and r is equal to 3. सेकेंड, आप देखिए नंबर सेम ही फाइंड आउट होंगे बट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. देन द नंबर्स आर a upon r, a and ar. Put the value. The numbers are 5, 15 and 45. अब देखिए सेकेंड केस में a upon r, a and ar. अंकल आया VIP से, जल्दी आओ. In both the cases number are 5, 15 and 45. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेबल हमें गिवन है, स्केल हमें गिवन है. वी हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोग्राम वी हैव टू फाइंड द मॉडल एज ऑफ द मेंबर्स, मीन्स मोड ऑफ द गिवन डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम. 2 centimeter is equal to 10 years along one axis and 2 centimeter is equal to 10 members along the other axis. X axis पर हम शो करेंगे ये क्लास इंटरवल मीन्स एज, और इसके लिए स्केल हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स. और वाई एक्सिस पर हम शो करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके लिए हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मेंबर्स. स्केल आप कॉर्नर पे मेंशन कर दीजिएगा. ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स and on y-axis 2 centimeter is equal to 10 members. First point on x-axis is 25. After 2 centimeter 35 because 2 centimeter is equal to 10 years, then 45 and so on. On y-axis 2 centimeter is equal to 10. First 10, 20, 30, 40 and so on. Now 25 to 35. (35 to 45) 32. अब देखिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास 10 मेंबर्स है. 2 सेंटीमीटर में आपको 20 स्मॉल पार्ट्स मिलेंगे और वो इक्वल टू 10 है. इट मीन्स 2 स्मॉल पार्ट्स इज इक्वल टू 1. वी हैव टू शो 32. तो 30 तो हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है और इसके बाद के 2 मेंबर्स के लिए वी हैव टू काउंट 4 स्मॉल पार्ट्स. आप ग्राफ पेपर पर इसको और ज़्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाएंगे. नेक्स्ट है 69. सो दिस पॉइंट इज 70 और हमें 1 स्टेप नीचे आना है, मीन्स 2 स्मॉल पार्ट्स नीचे ले लीजिए. नेक्स्ट 80. (61) अगेन दिस इज 60 और 1 के लिए हम 2 स्मॉल पार्ट्स काउंट करेंगे.
13, 10 और 3 के लिए हम 6 स्मॉल पार्ट्स काउंट करेंगे। हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। नाउ वी हैव टू कम द सेकेंड पार्ट। मॉडल एज मीन्स मॉड हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए मॉड हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें आपको देखना होगा कि कौन से पार्ट पर आपने इसको मीट करवाया है। आप देखिए, अगर हम 10th बीच वाले पार्ट में जस्ट मीट करवाएंगे तो 55 + 5 60 होगा। अब इसमें आप अगेन देखिए, इसके बाद 2 स्मॉल पार्ट्स आफ्टर 55, 2 स्मॉल पार्ट्स अगर आप लेंगे तो वो 56 होगा। अगेन 2 स्मॉल पार्ट्स लेंगे, दैट विल बी 57, और उसके आगे 2 स्मॉल पार्ट्स लेंगे, दैट विल बी 58। तो नियर अबाउट ये आपको मॉडल एज मिलेगी 58.5. Now third part, it is from mensuration. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical cap. If the height and radius of the cylindrical part 7 meter each and the total height of the tent is 14 meter. चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम। Cylinder surmounted by conical top. कुछ इस टाइप से टेंट है। हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर। रेडियस भी हमें 7 मीटर गिवन है और हाइट भी सिलेंडर की हमें 7 मीटर गिवन है। एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 14 मीटर। इफ द टोटल हाइट इज 14 मीटर, इट मीन्स हाइट ऑफ द कोन इज 7 मीटर, बिकॉज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 गिवन है हमें, तो ये 7 ही होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द टेंट। टेंट के इनसाइड हमें क्वांटिटी ऑफ एयर फाइंड आउट करना है, मीन्स सिंपली वॉल्यूम ऑफ द टेंट। दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेंट, and volume of tent will be equal to volume of cylinder plus volume of cone. Pi r square h and cone will be 1/3 pi r square h. Values put कर दीजिए। Pi is 22/7, radius is 7 and height is also 7. Volume of the tent is 1437.33 cubic meter. It means that will be the amount of air contained inside the tent. Now come to the second part. Radius of the sphere whose volume is equal to the quantity of air inside the tent. उस स्फेयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका वॉल्यूम ये है। Let this radius of the required sphere is r, then radius of the sphere is 4/3 pi r cube and that is equal to 1437.33. अब इसको देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में ले लें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी। r cube is equal to 49 into 7, then r is equal to cube root of this, it means 7 meter. Question number 7th, diagram हमें given है। The line segment joining A, this is the point A, and B
is intercepted by the x-axis at the point M and the y-axis at the point N. PQ is perpendicular to AB. This line PQ is perpendicular to AB, produced at R and meets the y-axis at a distance 6 unit from the origin. अब देखिए ये PQ y-axis पर पॉइंट S पर मीट हुई है एंड पॉइंट S का डिस्टेंस जो है वो 6 है. इसकी कोऑर्डिनेट देख के आप देख सकते हैं फिगर में भी. As shown in the diagram at S, find the coordinates of M and N. Look at this M. M का x कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन से -1 शिफ्ट किया गया है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द M is -1 and y coordinate is 0 because it is on x axis. Now come to N. N is on y axis, so its x coordinate is 0 and y coordinate is -1. Simply origin से -1 डिस्टेंस पर ये शिफ्ट है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ S. S is this point. x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 6 है. स्लोप ऑफ AB. ए बी का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है. ए के कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है. सो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फॉर दिस इज x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड दिस इज x2 y2 कोऑर्डिनेट ऑफ B. सो y2 इज 2, y1 is -3, x2 is -3 and x1 is 2. Slope of AB is -1. Equation of line PQ. Look at the figure. PQ is perpendicular to AB and slope of AB is known. So with the help of m1 m2 -1, if two lines are perpendicular, slope of first line is m1 and that of second is m2, then m1 m2 is equal to -1. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम PQ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं एंड a point S is known on the PQ. इसकी हेल्प से हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड मेथड इसको फाइंड आउट करने का है. आप देखिए PQ की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. इसका अगर हम देखें तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है -6 और y एक्सिस पर इसने इंटरसेप्ट कट किया है 6 का. तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ. स्लोप ऑफ PQ विल बी -1 अपॉन m1 मीन्स 1. नाउ इक्वेशन ऑफ PQ आप सिंपली यूज कर सकते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू mx minus x1. x1 y1 is a point on the line, that is 0 6. So y minus y1 is equal to mx minus x1. x minus y plus 6 is equal to 0. This is equation of PQ. Second method इसी को find out करने का. This point is 6 0 and this is -0 6 and this is -6 0 means intercept on x axis is -6 and that on y axis is 6. So slope intercept form use कीजिए. x upon a plus y upon b is equal to 1. x plus x minus y plus 6 is equal to 0. एक और मेथड है, एक और फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं. सपोज आपको इंटरसेप्ट फॉर्म उस टाइम नहीं ध्यान है तो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 because 2 points on the PQ are known. One is 0,6 and another is -6,0. So it is x1 y1 and it is x2 y2.
डिपेंड करता है कि आपके माइंड में उस टाइम कौन सा मेथड स्ट्राइक करता है, आप उसी से फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूरे क्वेश्चन पेपर में अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ओनली 2 पार्ट्स गिवन है और दोनों 5-5 मार्क्स के हैं। लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखेंगे तो उजाइब वाला जो क्वेश्चन था वो 6 मार्क्स का था और उसके साथ 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन ऐड था, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। टोटल मार्क्स जो है हर क्वेश्चन के 10 होंगे। तो चलिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स A and B ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर, लाइट हाउस की हाइट हमें गिवन है 100 मीटर, रिस्पेक्टिवली 42 डिग्री एंड 54 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप देखिए क्वेश्चन में शिप ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 42 डिग्री गिवन है, बट फिगर में ये 54 है, लेकिन इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ लाइट हाउस। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स A and B। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, इसको O लिख दें तो फर्स्ट ट्राइंगल इज AOC राइट एंगल्ड एट O, सेकेंड इज BOC राइट एंगल्ड एट O। 100 मीटर मीन्स परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमें फाइंड आउट करना है। यूज मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOC, angle O is 90 degrees, so we are using 10 ratio. 10A is equal to perpendicular upon base. Angle A is 54 degree, OC is 100 and OA we want to know OA is equal to 100 upon 1054। अब 1054 की वैल्यू आप लेंगे टेबल से, $72.65 आपको मिलेगा। अब दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कीजिए। B is 42 डिग्री, B is 42, OC 100 है और OB हम फाइंड आउट करेंगे। 1042 डिग्री की वैल्यू अगेन टेबल से हम पुट करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट 111.06। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स AB is equal to OA plus OB, means 72.65 plus 111.06, 183.71 meter. Give your final answer correct to the nearest whole number. Whole number में हमें अपना आंसर देना है, that is 184 मीटर। ड्यू टू दिस 7 एक ऐड हो जाएगा इधर। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।